Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, we'll start the class. In the last class, we did on-the-job training and off-the-job training. We also did various advantages and disadvantages of on-the-job training and off-the-job training. Today, there is one more topic in your module, which is the training procedure. Write down the heading, the training procedure. Although having studied this much, you will fairly understand what and how a training procedure should be. Write down the training procedure. First, you write down the various points in training procedure that we are going to discuss. First point, preparing the instructor. Ma'am, preparing. Preparing the instructor. Second point, preparing the trainee. Third point, getting ready to teach. Fourth point, presenting the operation. Yes, Muskan? Muskan has raised her hand. What happened, Muskan? What happened, Muskan? Okay, write down. Presenting the I can't unmute. You unjoin and then you rejoin because I have not muted you all from here. Okay. Next, presenting the operations. Next point, trying trainees' performance. Trying trainees' performance. And then last point is follow up. Last point is follow up. Is it okay, Muskan? Divya Yes, Kumari. ma'am. एक बार और बोल दीजिए ना मैम सारे points. Acha, we'll discuss it. Wait, then you write. Divya, yes. Ma'am, please repeat. Adiba. Fine, I'll repeat. But why has Divya raised her hand? What happened, Divya? मैम सेम प्रॉब्लम होगा, वो भी अनम्यूट नहीं हो पा रही होगी. Those who cannot unmute, please unjoin and then rejoin. हो सकता है कुछ technical error हो. Okay.
First point, we will simultaneously discuss it and you write the point. The first point, see, this is a very basic thing which is there in your module, so I chose to discuss it. But after having this much in your training and development module, you can understand it on your own. The first point is preparing the instructor. See, instructor का मतलब क्या हुआ? Trainer. Okay. Yes, ma'am. इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का मतलब इन्फॉर्म करना, बताना. यहाँ इंस्ट्रक्टर का मतलब है ट्रेनर, which means that you think that training is an organized activity. So the organization of training also involves preparation of instructor and not just the choice of instructor. Once the choice has been done, whether the trainer is being called from inside the organization or outside the organization, the very next step is to prepare the instructor. How do we prepare the instructor? See, suppose if I'm going to take your class, for example, when I was taking your add-on course, okay, payroll course. So I would understand this fact that you have never been acquainted with this subject HR before. So when I started with my add-on course, I divided the course into logical sequence, right? First, the very first day, do you remember the very first day I gave you an introduction of HRM? Yes, ma'am. And why was this important? Because the entire payroll is an HR subject. And since you have never been aware of the subject HRM, so ये important है बताना कि HRM काम कैसे करता है. Only then you will be understand the nuances of this subject. The same holds true for the instructor also. When we say that we have to prepare an instructor, we mean that the instructor has to divide the plan. जैसे milestone क्या होता है? अभी जो हम लोग milestone sign कराते हैं, ये क्या होता है? This is a class plan. What do we do in class plan? See, we divide the course or we divide the subject, the number of days required to complete that lecture into logical sequence. That this is like a plan. Similarly, the training job must be divided into logical sequence, and then the instructor should take that course in that logical sequence, keeping in mind the desired technique which is required to take that class. Okay? Training एक ही तरीके से नहीं होती है. ट्रेनिंग का कुछ कंटेंट होगा जो इलस्ट्रेशन रिक्वायर करता होगा. ट्रेनिंग का और भी कंटेंट होगा जो डेमोन्स्ट्रेशन रिक्वायर करता होगा. ट्रेनिंग का कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो काफी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करता होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो रिपीट कर दीजिएगा. क्या रिपीट कर दें? सिर्फ ये पॉइंट की पूरा? डेफिनेशन, बिकॉज़ मैम अभी एग्जैक्ट मैंने क्या था तो मैं पॉइंट भूल गई. दिस इज जस्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम डिस्कसिंग. आपको एक ठीक है, जिन लोगों का छूट गया है आप लोग लिख लीजिए, तभी समझ में आएगा. फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर. Second point, preparing the trainee. Write fast. Third point, getting ready to teach. Fourth point, presenting the operation. Fifth point, trying trainees' performance. Trying trainees' performance. And finally, follow up. Last point, follow up. Okay. The first point that we were discussing, Divya, the first point we were discussing was preparing the trainee, preparing the instructor. Who's an instructor? The one who trains you. He's an instructor. Okay. Now, in a training program, we already discussed it in the last class that trainers can be called
either from inside the organization or from outside the organization. Once this choice is made, the trainer has been selected. Not only the trainees, not only the organization of program, but the trainer also has to prepare himself for taking the training. Why? Because the entire training program, there are some trainings which are given for 6 months. There are some trainings which are given for 2 months or 3 months, and there are some trainings which are given for 15 days. So whatever the length of the course be, what happens that your training program is divided into logical sequences कि एक के बाद एक होना चाहिए ताकि ट्रेनिंग को ठीक से समझ में आए. And the training program cannot be implemented, you cannot apply the same technique to all the trainings. There could be some subjects in training which would demand demonstrations, some subject which could demand explanation, some subject which could demand illustrations. So accordingly, the trainer has to use. Okay, Divya? Yes, ma'am. Okay. Second point is preparing the trainee. Okay. See, before a trainer goes for training, for example, I'll give you my example. When I went to a class for taking add-on courses, I was told that you people have never been, you've never been into this HR subject. You have never studied HR subject. In the 3rd year, you have to study HR subject. So I came with this frame of mind that these students are unaware of the HR terms, unaware of what an HR does, how an HR does. So before coming to the core subjects, I had prepared you by giving one class lecture about what HRM is. Okay, because you knew it in parts. ऐसा नहीं है कि आपको HR के बारे में कुछ भी पता नहीं था. आपको पता था, but parts में पता था. Right? You knew it in parts. It just had to be collected and put at one place. Sometimes we cannot understand that, oh, this is what we have to study in course which is going on around us. It does happen. When it gets substantiated through theories in your book, you feel more attached to it. You feel more relevance of the same, right? So the next step is preparation of trainee. See, एक trainer के लिए किसी class में, like I was taking payroll course simultaneously in 6 batches. Okay, I was taking that courses in BCom 2nd, BCom 5th, BBA 2nd, your class, BBM, that time you were BBM 2nd, I was taking it in BBM 1. But what happens is that maybe this year if I take the subject, they are not the same students, right? So I have to take into consideration the newness of the students. Similarly, एक trainer के लिए अगर कोई experienced or learned trainer है, तो this means that he has been taking the same training since years. But then when he comes for training for the first time to a trainee, he understands that this batch is new to me. So he understands the newness of the trainees. Sometimes, what happens is we are very nervous when we are going to learn any new skills. Sometimes we are very nervous when we are going to new skills, and the same thing happens with the trainees also. So it is the work of trainer to put that hesitation aside by understanding that before starting the course, you have to take into the psychological consideration of the trainees. Understood? Yes. Next is getting ready to teach. Getting ready to teach का मतलब होता है आपको various जैसे logical diagrams चाहिए, illustration चाहिए, किसमें demonstration चाहिए, flow chart चाहिए, ये सारी चीजें हैं. कोई item को in depth discuss करना है तो वो discuss कीजिए. अगर आपको बार बार repeat करना है तो repeat कीजिए. लेकिन हाँ, एक rule है कि when you're repeating the things, do not repeat in the same with the same examples. It is always advisable and preferable to, when you're repeating, you use different examples so that the trainees, they have understanding of the subject from various facets. Okay. And this also involves planning the entire program. The next topic is presenting the operation. This is also the same thing. Both these points are overlapping. When you present the operation, मतलब जब आप finally इस चीज को training material को deliver कर रहे होते हैं, then you have to understand that
it's sometimes it needs explanation, sometimes it needs demonstration, sometimes it needs flow chart, pictures, diagrams or some other training aid. हो सकता है आपको कोई मूवी दिखाने की जरूरत पड़े उस ट्रेनिंग को समझाने के लिए. जैसे बहुत सारे जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होता है ना, उसमें मोटिवेशनल फिल्म्स दिखाते हैं. जो ट्रेनर्स होते हैं, बहुत हाई लेवल के जो ट्रेनर्स होते हैं, वो मोटिवेशनल फिल्म्स दिखाते हैं. तो उसके लिए प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, या इस तरीके का कोई भी टेक्निकल एड्स यूज किया जा सकता है. The next point is try out the trainee's performance. It is always advisable that once you are done with the training thing, you try out the trainee's performance. यानी are they able to perform or not? उनको step by step आप guide कीजिए, let them do, and then if there is anything wrong, you give the feedback. And the last point is follow up. See, this is a very important part. This is a very important part in any training procedure, that you have to take the follow up of the entire training program. No matter how good a training program you have conducted, no matter how good your trainees are, how good or how expert the trainer is, लेकिन ये बोला जाता है कि we tend to forget more than 50% of what we have learned in 48 hours if we do not revise it. Okay? Human minds के बारे में ये बात बोली जाती है कि if suppose there's a class, you have learned a new skill, and if you do not revise it within 48 hours of learning it, you will forget half of what was there in the skill. So follow up is very important. What does follow up do? This follow up will reinforce what you have learned, and the skill will be actually put to most of its use. Understood? Yes, ma'am. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ये ना नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग. साइलेंट था तो अभी उसको ऑन कर लीजिए, उस वही नंबर डाल रहे हैं आप फॉर्म में, फॉर्म भर रहे हैं, उसको मैसेज आएगा, तुरंत आप हमको फोन करके बताइए. ठीक है, ये आप लोग बताइएगा एक एक पॉइंट करके. बताइए क्या होता है एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग. इतना चैप्टर अब खत्म होने वाला है. You please tell me, what did you understand out of this chapter? मैम ट्रेनिंग और ट्रेनिंग. बोलो एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग. क्या फायदा होता है ट्रेनिंग से? क्यों ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कराती है? टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट्स एम्प्लॉय. ठीक है, तो इसको कुछ तुम अच्छे टर्म्स में बोलना चाहोगे? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. वेरी गुड. लिखो पहला पॉइंट, सब लोग लिखिए. टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. अब इस पॉइंट को जरा एक्सप्लेन करो. प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ठीक है. तो ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्या ये सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में बढ़ती है? नो मैम, देन क्वालिटी के टर्म्स में भी. यस, ये आप याद रखेंगे कि इट इज नॉट ऑलवेज कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में बढ़ती है, बट इट इज ऑल्सो एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी. अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कभी तुम लोगों ने देखा है डोमिनोज में पिज्जा बनते हुए? Yes, ma'am. Okay, so this was an unfamiliar voice when the Domino's example was there. Okay. यस मैम. So, जो आप जब भी पिज्जा मंगाएंगे, उनका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उनका जो भी प्रोडक्ट है, उसका एक SOP फिक्स्ड होता है.
वो जितने टाइप का, अगर फार्म हाउस पिज्जा मंगाते हैं आप, मार्गरीटा मंगाते हैं आप, या फिर जो भी है, ठीक है, चीज एंड कॉर्न मंगाते हैं, उनका एक एसओपी फिक्स्ड है। वो उस पिज्जा में उतना ही मेजर करके, नाप करके कॉर्न डाला। आप जितनी बार उसका एक ही टाइप का पिज्जा टेस्ट करेंगे, क्या उसका टेस्ट अलग अलग आता है? कभी आ भी सकता है, ठीक है, लेकिन यूजुअली तो सेम टेस्ट होता है। Yes, ma'am. और अगर नहीं आता है, दिस शोज लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, क्योंकि उनका जो पिज्जा होता है वो क्वांटिटी मेजर करके डाला जाता है। अगर आप कॉर्न एंड चीज मंगाते हैं, उसमें अमाउंट ऑफ चीज कितना ग्राम जाना है उस पिज्जा में, रेगुलर, मीडियम एंड लार्ज में, वो लिखा हुआ है। कंपनी ने उस प्रोटोकॉल को फिक्स करके रखा है और उसको उतना ही डालना है। कॉर्न उसको उतना ही डालना है, टॉपिंग्स उसको उतनी ही डालनी है, ठीक है, वेट करके। अगर वो ज्यादा देता है, कम देता है, बेक कम करता है, दिस शोज द लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द मैन पावर और स्टाफ। कभी कभी होता है ना, बहुत खराब पिज्जा बन जाता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होगा। Once in a while. वंस इन अ वाइल, सो दैट वंस इन अ वाइल थिंग अगर उसको हम लोग छोड़ दें, तो हम ये बोलेंगे कि उसका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड क्यों है, क्योंकि इट हैज ट्रेन्ड इट्स स्टाफ लाइक दैट। अब उसका स्टाफ ये भी तो कर सकता है कि मान लो कि किसी में 15 ग्राम चीज डालना है, तो उसमें वो 5 ग्राम चीज डाल दे या 25 ग्राम चीज डाल दे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड टू मेक दैट, ठीक है। सो अगर ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है अब स्टाफ को, this means that standardization of products and services is more like a rule than an exception. Understood? Yes, ma'am. आप कोको कोला जितनी बार पीते हैं सेम टेस्ट ही आता है ना? Yes, ma'am. This is Yes, also ma'am. because the manpower is trained behind for standardization of product and services. ये मशीन मेड है, जैसे बिरयानी बाई किलो की बिरयानी मशीन मेड होती है। आप जितनी बार भी ऑर्डर करेंगे वो बिरयानी का आपको सेम ही टेस्ट आएगा। Okay, that leads to standardization. लेकिन despite the fact कि things are made from machine, the training or the man behind that machine, उसकी ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताओ। Efficient use of resources. To reduce wastage. टू रिड्यूस वेस्टेज, वेरी गुड। Achieving general goal. तो वेस्टेज एक एक करके डिस्कस करो पॉइंट को। वेस्ट रिड्यूस करने से क्या होगा? Resources will be used. Proper utilized. Will be properly utilized. और प्रॉपर्ली यूटिलाइज होने से क्या होगा? So the cost will be less. The हाँ, तो company will पूरी get बात less बोलो, cost, पूरी less बात cost. बोलो। हाँ, गुड। टॉक लाइक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन, ठीक है। अगर तुम्हारा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहा है, इफ यू आर मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दिस विल लीड टू अ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, Come new technology, so they provide trainings, ma'am. एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग क्या बोले तुम? मैम न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है तो फिर उसको प्रोवाइड करते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। वो दैट इज अनदर थिंग, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग। और बताइए। Ma'am, creating future leadership for the company, because if we are training an employee today, he or she will become a head in that Ah. company after 10 years. हेड नहीं लिखोगे, यू विल लिख देम मोर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, प्रिपेयरिंग पीपल टू होल्ड मोर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन फ्यूचर। राइट डाउन, preparing people to hold more responsible position in future. And other points? ये हम लोग डिस्कस किए थे पहले ही क्लास में. You just come forward and discuss it, okay? And only 3 people have their cameras on.
Divya, Ved Prakash, and Muskan. Muskan, where were you today? चलो, tell me कि और क्या underneath after payroll this class is complete dormant जो core course का है बताइए और एक्सीडेंट का और एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बताया तुम लोग ट्रेनिंग का यूज मैम सेफ्टी increase सिक्योरिटी safety ऑफ increase Yes, ma'am. safety you will always say increased safety why increase safety मैम अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं they will make use of they will make efficient use of the safety devices the safety box gear boxes and everything yes and और कौन सा Ma'am, बताइए is the motivation level. बताओ Improve Increase the organizational motivation level. wait Vineet is saying something let me hear out say Vineet Ma'am, improve organizational structure. नहीं ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा बताओ स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो ना मैम क्योंकि मैम ट्रेंड रहेगा तो फिर उस मतलब ज्यादा वो हार्म नहीं करेगा जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री में बॉयलर वॉयलर होता है तो अगर ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो वो फिर वो सिक्योरिटी में ही आ गया वो हम वो बोल तो सेफ्टी में आया है ना दैट विल कम अंडर सेफ्टी यस मैम एंड Increase the Reduce motivation. employee turnover. increase in employee turnover Reduce, ma'am. reduce employees turnover हाँ ये कह सकते देखो सुनो ये पॉइंट आप मार्क करके हेडिंग पे नहीं लिख सकते हैं कि क्योंकि कोई ऐसा फुल फ्लेजेड there is no data that is approving of this fact क्योंकि employee turnover बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स की वजह से भी होता है जो पर्सनल फैक्टर्स होता है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है अंडरस्टूड सो ये तुम सही बोल रहे तुम इसको ऐसे पुट फॉरवर्ड कर सकते हो कि इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स ठीक है यू कैन राइट इट जो पॉइंट तुमने बोला वो सही बोला लेकिन यू बेटर राइट इट अंडर द हेडिंग इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स लिखिए increased stability of workforce. Next point, higher promotion and growth opportunities for employees. Promotion and growth opportunities for employees. Okay. और ये जो स्टेबिलिटी जो आकांक्षा ने पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया दिस स्टेबिलिटी इज नॉट जस्ट फॉर द एम्प्लॉइज अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय स्टेबल होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्टेबिलिटी में भी रिजल्ट करता है एंड इन टर्न वो एम्प्लॉइज टर्नओवर को रोकता है जो आकांक्षा ने बोला दैट इज अ वैलिड पॉइंट दैट इज दिस शोज दैट शी हैज अंडरस्टूड दिस टॉपिक कि एम्प्लॉय टर्नओवर को स्टॉप करने में बहुत हद तक मिनिमाइज करने में ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि तुम भी कल को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे और वहां पे तुमको अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ नजर नहीं आया करियर प्लानिंग जैसा कुछ नहीं नजर आएगा यू विल ऑलवेज सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस तुम भी छोड़ने के चक्कर में रहोगे कि जहां बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां हम छोड़ के निकल जाएंगे ठीक है तो अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है दिस इनकलकेट्स कॉन्फिडेंस इन यू दिस शोज दैट यू आर लर्निंग न्यू नॉलेज न्यू स्किल्स एंड दिस इनकलकेट्स मोर कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी not just for your tenure in the organization but overall organizational stability ठीक है अब देखो एक पॉइंट है एक और पॉइंट तुम लोग लिखो और वो हमको समझाओ कि इसका क्या मतलब है reduced supervision लिखो पॉइंट reduced supervision reduced supervision what is the meaning of reduced supervision
कैसे रिड्यूस सुपरविजन घटाने में हेल्पफुल होगा ट्रेनिंग? जब भी स्टाफ अगर ट्रेन रहेंगे तो उनको देखने के लिए जो भी सुपरवाइजर्स वगैरह का जरूरत पड़ता है, उन लोगों का वर्कफोर्स कम होगा। मतलब ऐसे लोग को कम रखा जाएगा बिकॉज जो भी स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है। बाकी लोग बताइए, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड और इज देयर एनीथिंग यू वांट टू काउंटर इन दिव्या's आंसर? मैम रिड्यूस सुपरविजन, अगर ट्रेनिंग हम अच्छी करेंगे तो सुपरवाइजर का एक नीड खत्म होगा, तो हम डिसेंट्रलाइज करते रहेंगे प्रोसेस को, तो उससे जो सेंट्रलाइजेशन है वो कम होगा, तो उससे कंपनी का कॉस्ट भी कम होगा और वो बाकी चीजों पे ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगी। ठीक है, इसका मतलब आप लोग ये टॉपिक समझ गए। हाँ, मतलब ब्रॉडली जो तुम लोगों ने बताया ये सही बताया। अच्छा, इसी में ऐड करते हुए हम आपको बताते हैं, लीडरशिप पढ़े आप लोग? यस मैम। 3 काइंड्स ऑफ, अब तुम लोग बोलते ही नहीं हो कि मैम क्वेश्चन पूछ लेगी, बोलो ही मत कि पढ़े। पढ़े हैं मैम बट अभी ठीक है, वो तो एक्सपेक्टेड है। चलिए, लीडरशिप 3 तरीके की होती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और लेजस फेरी। इतना पढ़े होगे, याद है? Yes, सुना लग रहा है? यस मैम यस मैम yes, ma'am. सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को कंप्लीटली छोड़ दो। हिटलर कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां सिर्फ एक आदमी ही बोलता है और सबको उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस बिना किसी ऑब्जेक्शन के फॉलो करना होता है। जब हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं तो वहां पे जो फॉलोअर्स होते हैं वो, उनको जो लीडर होता है वो एंटरटेन करता है, उनका भी सजेशन या रिकमेंडेशन माना जाता है, उनको भी वैल्यू की जाती है। लेकिन जो लेजस फेरी लीडरशिप स्टाइल होता है ना, लेजस फेरी, इसके बारे में थोड़ा कम जानते होगे। लेजस फेरी जो लीडरशिप स्टाइल होती है, ये नॉर्मल फॉलोअर्स के लिए नहीं होती है, या ये नॉर्मल लोगों के लिए हम नहीं बात करते हैं। जब हम लेजस फेरी लीडरशिप के बारे में बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको ऑलरेडी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में आ जाओ, मान लो हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है मान लो कि देयर इज अ फॉरेन कंपनी विच इज गोइंग टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया, बहुत बड़ा सा ब्रांड है, मान लो टेस्ला इंडिया में आती है। ठीक है, टेस्ला इंडिया में आती है, ये इतनी बड़ी कंपनी है, अगर इंडिया में आती है और इंडिया का मार्केट रीड करने, कंज्यूमर बिहेवियर समझने और लोकल फैक्टर्स और एवरीथिंग, पॉलिटिकल फैक्टर्स एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कंबाइंड समझने के लिए अपने लोगों को लाती है, देयर इज अ टीम ऑफ इट्स एक्सपर्ट्स। तो तुमको लगता है कि जो वो टीम लाएगी वो नौसिखिया का टीम लाएगी? नो मैम। नहीं No, लाएगी ma'am. ना। नो मैम 10-12 साल के कोई जीएम होंगे, कोई एजीएम होगा, कोई किसी प्रोजेक्ट पे 10 साल काम कर चुका होगा, किसी एक कंट्री का प्रोजेक्ट संभाल चुका होगा। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको लीड करने की जरूरत नहीं होती है। यानी अगर हम लोग एक टीम है, जो सपोज यू ऑल एंड आई आर अ टीम, अगर हम लोग एक टीम है और हम लोग 10-12 साल का में अलग अलग जगह पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब संभाल के आए हैं, तो अगर हमको एज कंबाइंड एक प्रोजेक्ट में डाला जाएगा तो बराबर ये बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कितना काम किए, रिपोर्ट दो, बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर सो मच रिस्पॉन्सिबल। हम खुद अपने काम के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल हैं और इतनी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं कि हमको लीडरशिप की जरूरत नहीं है कि वी अंडरस्टैंड आवर वर्क वेरी वेल। Why does this happen? This happened because we are already trained. क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ट्रेंड हैं। इसीलिए जो तुमने अभी ये बात लिखी रिड्यूस्ड सुपरविजन, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इफेक्टिव टूल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा टूल? कंट्रोल। यानी अगर आपके एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे तो ऑब्वियसली आपको उनके पीछे हर छोटी चीज के लिए सुपरवाइज करने, हर छोटी चीज के लिए गाइड करने, गाइड मतलब गाइड किस में आता है? डायरेक्टिंग में। हर छोटी चीज के लिए सुपरवाइज करना, गाइड करना, कमांड करने की जरूरत नहीं होती है। So training makes you more responsible, and from management point of view also this acts like a management tool. समझ में आया?
नहीं बताओगे फॉर्म भराएगा नहीं, साल बर्बाद हो जाएगा। ये पॉइंट लिखवा देते समझ लिए मैसेज को? कौन सा पॉइंट? हेलो रिड्यूस हेलो? सुपरविजन नहीं लिख पाओगे? देखो हम फिर से समझा देते हैं, पॉइंट खुद से लिखो। रिड्यूस सुपरविजन का मतलब है तुरंत फोन करके अगर बताना, लेट होगा एम्प्लॉइज नहीं ट्रेंड भरा होते पाएगा, हैं, तुम समझोगे ठीक तुम्हारा है, काम समझेगा, अगर एम्प्लॉइज तुम ट्रेंड कॉल होते कर हैं तो रहे हो। ऑब्वियसली तुम ये समझ ठीक है? सकती हो कि किसी जो तुरंत बच्चा, मान लो तुम बीबीएम करके फोन नौकरी करोगे, करने के लिए मैसेज जाओगे तो नहीं तुमको करना ज्यादा है। सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी या 4 साल जो नौकरी कर चुका है उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी? हमारा नहीं हमको पड़ेगा। तुमको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम मैसेज अनट्रेन्ड हो, आएगा, तुमको फोन पता करोगे। नहीं है काम कैसे करना है, रिसोर्स का 15-20 मिनट यूटिलाइजेशन में किसको रिपोर्ट करना है, क्या करना है, तुम्हारे अंदर खास कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। बस यही है कि रिड्यूस सुपरविजन, तुम्हारे पीछे सुपरवाइजर को ज्यादा लगना पड़ेगा। अभी हम तुमको लेजर्स फेरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताए कि लेजर्स फेरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नॉर्मल मास के लिए नहीं होता है। जब वैसे लोग जो ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं आपके ग्रुप में, वैसे लोगों के साथ हम सिर्फ लेजर्स फेरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ बोलो। मैम जैसे बहुत सी कंपनीज होती हैं जो ट्रेन तो बहुत अच्छा करती हैं, बट वहाँ लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर भी ज़्यादा होता है, बट वो फिर एक एल्यूमिनाई नेटवर्क क्रिएट कर देता है उस कंपनी के लिए, वो कंपनी, तो वो भी तो एक एडवांटेज हो सकता है। एल्यूमिनाई नेटवर्क, देखो इस चीज को बहुत डिटेल्ड वे में तुमको बहुत सारे एंगल से समझना होगा। ठीक है, एल्यूमिनाई नेटवर्क टर्न कर देता है तो फिर मतलब तो तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब फिर उनके लिए एक, मतलब वो गुडविल भी क्रिएट करता है कभी कभी कंपनी के लिए, अगर वो डील करना चाहती है दूसरी कंपनी के साथ। हाँ तो उस में हाँ, देखो हम लोग जो बिजनेस पढ़ते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा बिजनेस जब तुम नौकरी करोगे तब सीखोगे। ऑल व्हाट यू आर स्टडिंग हियर इज ऑल दैट इज थियोरेटिकल इन बुक। ठीक है, ये एक फाउंडेशन तुमको जरूर देता है समझने का कि चीजें कैसी होती हैं। बाकी बिजनेस बहुत तरीके से होता है। तुम लाइन स्टाफ और स्टाफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। बट देखो पैंडेमिक के टाइम पे सीईओ के पोस्ट को भी, जैसे कल सुंदर पिचाई का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि 3 डेज ऑफिस कॉल करना और बाकी डेज वर्क फ्रॉम होम कर देने से एक वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक मेंटेन रहेगा। लेकिन बहुत लोगों ने काउंटरैक्ट किया कि these are old fashioned people, these are just stuck to the old style of management। अभी completely भी वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उतनी ही डिलीवर होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड। The people who are generating more and more profit are the people who are not working in front, or those people who are now the forerunners। ठीक है, जो लोअर लेवल के लोग हैं। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन को एक बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। समझ में आया? जो तुमने बोला वो एक वैलिड पॉइंट है, ऐसा होता है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो से छोड़ करके एंड देन एल्यूमिनाई दे जस्ट फॉर्म देयर ओन नेटवर्क एंड दे स्टार्ट कंसल्टिंग एंड देन दे स्टार्ट फ्रीलांसिंग। सुना है ना ये सब? ठीक है, और ऐसा जो ज्यादा आप देखेंगे कि जो अच्छे अच्छे मैनेजमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट होते हैं, एल्यूमिनाई होते हैं, वो ज्यादा करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं एंड देन दे क्रिएट बिजनेस फॉर देयर कंपनीज ऑल्सो। उनको काफी हैवी रेम्यूनरेशन भी मिलता है उस चीज का। यस मैम, कंसल्टेंसी फर्म्स में बहुत ज्यादा। हैव यू हर्ड ऑफ द हैंडबैग व्हिच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ? ज़ाउक का नाम सुना है तुम लोगों ने? नो, हैव यू हर्ड ऑफ इट? कभी फेसबुक पे देखा हो, डिजिटल मार्केटिंग में, या ऐसे Amazon पे देखना। ठीक है, ZOUK, ओके, दिस इज अ न्यू ब्रांड ऑफ हैंडबैग जैसे वेद ने बनाया। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग, वेद ने बताया, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग व्हाट ही सेड। ज़ाउक का एक हैंडबैग है जो भी ये ट्रेंड आई है। दिस इज 100%, it claims to use 100% vegan leather which is PETA approved, no animal harmed and everything, and this is handcrafted. So the bag's a little expensive in comparison to others, but this company has been formed by IIT and IIM alumni. Okay,
तो इसका और भी बिजनेस है, ये और भी तरीके से काम कर रहे हैं. तो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग दैट यू नो और वी नो, बट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. तो ट्रेनिंग का तुमने बताया. नाउ write down the next topic, evaluation of training program. Evaluation of training program. Yeah. Write down the heading, evaluation of training program. See, this is one of the most important things after conducting the entire training program. Why do you think is evaluation important? टेस्ट करने के लिए कि जो सिखाए वो प्रॉपरली मतलब स्टूडेंट्स सीखे या नहीं. बस यही पर्पस होता है या कोई और भी पर्पस है? मैम कहाँ कमी रह गई वो चीज देखते हैं मैम, कहाँ पे हम लोग सीख वो ट्रेनिंग दिए जो वो पूरा कंप्लीट हमारा हुआ कि नहीं, और फीडबैक. जो एम्प्लॉयज सीखते हैं, एम्प्लॉयज ने कितना सीखा, इसके अलावा पॉइंट्स बताइए. मैम इसके अलावा जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ट्रेनर, उन लोगों में अगर कोई डिफिशियंसी है तो उसको भी पता कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हालांकि इसका बहुत प्रोविजन नहीं दिया जाता है मुस्कान, इसलिए क्योंकि द ट्रेनर्स आर ऑलवेज बेटर देन द ट्रेनीज. ओके, तो ये नहीं है. हाँ, एक फीडबैक, एक जनरल फीडबैक फॉर्म जरूर किसी किसी ट्रेनिंग प्रोसीजर में भरवाया जाता है. इसके अलावा बताइए, कुछ आप सोच सकते हैं तो. मैम इवैल्यूएशन हेल्प मतलब करता है कि एम्प्लॉयज को या ट्रेनीज को ये पता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे एग्जैक्टली क्या चाहती है. वाज दिस मुस्कान? यस मैम. देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है तुमको हम बताए ना. देखो, ये दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर एंटायर चैप्टर ट्रेनिंग. ये लास्ट टॉपिक है. डेवलपमेंट हम सोचे थे, नाम दिया हुआ है, बट डेवलपमेंट का ऐसा बहुत तुम्हारे मॉड्यूल में कोई खास चर्चा नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट एक कंप्लीटली अलग चैप्टर ही होता है. तो तुम ट्रेनिंग अगर तुम पढ़ी हो तो डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बताए थे ना तुम लोगों, ये फॉर्मेट बताए थे. तो नीड तो पहले ही आइडेंटिफाई कर ली जाती है, तभी जाकर के ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया जाता है. सो दिस इज नॉट द थिंग. सी, व्हेन यू स्टडी बिजनेस, you should always consider its outcome in terms of two things. One is, ये आपको पेरोल के टाइम हम पढ़ाए थे, बताइए. बिजनेस को हमेशा दो चीजों में ज्यादा, जब भी इवैल्यूएट करोगे तो उसको दो चीजों में इवैल्यूएट करो. पहला टाइम और दूसरा कॉस्ट. प्रॉफिट. तुम लोगों में से किसी ने भी कॉस्ट का मेंशन नहीं किया. क्यों? इस पूरे ट्रेनिंग वाला लेक्चर के दौरान आई हैव यूज्ड दिस सेवरल टाइम्स दैट ट्रेनिंग इज अ ह्यूज कॉस्ट फॉर्म बाय द कंपनी. ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी HR डिपार्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ट्रेनिंग कराता है, इट मींस अ ह्यूज कॉस्ट इज बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्यों इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाती है? इवैल्यूएशन की जरूरत इसलिए पड़ती है टू सी कि मान लो कि तुमने एक बजट रखा था कि हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 लाख में खत्म कर लेंगे. ठीक है, 10 लाख का बजट तुमने मांगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि 10 लाख में वी विल बी एबल टू फिनिश आवर प्रोग्राम, जिसमें से 4 लाख तुम्हारे ट्रेनर का कॉस्ट था, बाकी 6 लाख में तुमने पूरा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया. और तुम्हारे मिसमैनेजमेंट की वजह से यू रिक्वायर्ड 12 लाख. तो तुम ये चीज पढ़ोगे ना, बाद में जाके इवैल्यूएट करोगे कि ये एक्स्ट्रा 2 लाख कहाँ खर्च हुआ तुम्हारे लिए, राइट? सो कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ऑन द कॉन्ट्ररी, अब दूसरे साइड पे देखो. मान लो 10 लाख तुमने बजट लिया, पहली बार तुम किसी चीज को ट्रेन कर रहे हो और 10 लाख में ही तुमने खर्च कर लिया, नो इश्यूज. बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट द नेक्स्ट टाइम. Maybe this time you felt कि देखो, कोई चीज एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद तुमको समझ में आता है कि इसको और इस तरीके से किया जा सकता था, उस तरीके से किया जा सकता था, right? The same thing happens with the HR department of the organization also. When you take the training, when the training is completed,
they kind of evaluated to know क्या इसमें कोई और further scope of improvement था, okay? क्या इसको कम टाइम में कंडक्ट किया जा सकता था और क्या हम कहीं से किसी तरीके से कुछ सेव कर सकते थे? Understood? This is why evaluation of training program is important. अगर कोई लूप होल नहीं आया, सक्सेसफुली तुमने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट कर, तुमने कंडक्ट कर लिया, फिर भी there is always a scope of better management the next time. ठीक है? अब लिखिए, so how will you evaluate a good that your training program is good? Write down the first point, reactions. Reactions. दूसरा, learning. तीसरा, job behavior. चौथा, organization. और पांचवा, ultimate value. ओके, सी, इन सब चीजों का क्रक्स यही है कि रिएक्शंस मींस यू टेक द ट्रेनीज रिएक्शंस, ओके, यू विल टेक द ट्रेनीज रिएक्शंस की वो क्या ऐसा उनका रिएक्शन कैसा है, आर दे सैटिस्फाइड, आर दे नॉट सैटिस्फाइड, डू दे से दैट दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस this training program. The second is learning, how much the individual has learned. There is also an exam which is conducted at the end of the training, which is mandatory in many cases to get the certificate कि आपने सीखा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा. Okay, then you have job behavior. ट्रेनिंग के साथ जब डेवलपमेंट ऐड हो जाता है ना, डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन बिहेवियर. देयर आर सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो दैट फोकस अ लॉट ऑन बिहेवियर. Fine. So if there is a behavior change in the person after training, then that training is said to be of use to the person or the organization. Then we have organization and ultimate value. इसका मतलब है हर organization का अपना अपना एक ultimate goal होता है. जैसे for struggling organization, survival or sustainability is a problem. For mature organization, expansion and diversification is the prime goal. So their training is according to their required motives, right? Right? वो training अपने need के हिसाब से देते हैं. So in that case, that is also one of the methods to evaluate whether your training program was successful or not. With this, we complete this chapter, your chapter training. I've covered all the points. Next, since your syllabus is concise, next class, it will be a doubt clearing class. You please study this entire chapter training because there will be an assignment coming up from this chapter. If there is any doubt, you can come up with your doubts in the next class. Okay, and then I'll give you an assignment. You'll have surplus time, sufficient time to cover that assignment. Okay. Okay ma'am. Why do you need a PDF then? मैम लाइक अगर कुछ पॉइंट्स छूट गया तो बुक रहता है तो We'll help हो discuss it in the जाता है. next class. Na? I told you, if there's anything, you prepare this chapter, we'll discuss it. I'll not do the spoon feeding thing to you. चलिए, ठीक है? आपको कुछ भी पूछना हाँ, है, ma'am. रिपीट में हम उसको 4-5 बार ही बताएंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है. लेकिन आप थोड़ी मेहनत कीजिए उस पर, ठीक है?